Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. I'd like to start by asking, what do you understand by drugs? Drugs क्या है? समझ रहे हैं कि क्या drug है, but एक इसका definition है. So drug is anything apart from food and water. Brain controls your thought process and spinal cord controls your movement. همین مغز که از مثلا ما شما چی حدس میزنیم یا چی فکر میکنیم یا چی صحبت میکنیم سر از او فشار میاره. There are certain type of drugs which will enhance or increase the function of the brain and spinal cord. You get hurt or you have fractures or you have some major operation, the doctor gives you painkillers, pain relief medicines. These are also depressants because they slow down the activity of the brain and you feel you're not actually feeling the pain. First we said stimulants, depressants. Now we come to something called hallucinogen, which means that you are imagining things. When you take certain types of drugs, you see things, you hear things, Imagine, right. you smell things which are not there. Okay, and there are certain drugs which are totally illegal. Can you name something? Heroin. Yes. Possession, selling, consuming, everything is illegal. Can you tell me what kind of drugs do children take? आपको मालूम है इनहेलेंट्स उसको बोलते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस. उसको कपड़े में डालते हैं एंड उसको स्मेल करते हैं और उससे होता क्या है, डायरेक्टली नोज से आपके ब्रेन में जाता है. डू पीपल ऑल्सो टेक ड्रग्स व्हेन दे आर हैप्पी? यस. अगर जब लोग खुश होते हैं तब भी ड्रग्स लेते हैं. They will enjoy, they will celebrate. Celebration, right? Achievement, पार्टी, शादी. So they want to, दुखी है तो भी ड्रिंक लेंगे, खुश है, हैप्पी है तो भी ड्रिंक लेंगे. So it becomes an excuse, right? Excuse, Yeah. excuse. And young people में, children में, what do you think? You're right. जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला. Young people and children, why they take drugs? Why do you think? When they see their parents. Absolutely, very right. बहुत बढ़िया बोला. Often. पेरेंट्स को घर में देखते हैं, so वो उनके लिए रोल मॉडल्स हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो लोग. हमारे पास ऐसे सेंटर है जहाँ पे लड़कियाँ आ रही हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, एंड वी हैव सीन सम ऑफ देम आर प्रेशर्ड और lured by adults to commit crimes. They first put the child into addiction and then they ask them to commit crimes. Like snatching mobile phones, snatching chains, committing other things. And we have seen, because children are coming to our centers for treatment, and when we take the history, we realize that it is not they themselves who are committing, they were forced to commit it. And because they got hooked to drugs. The children who come to our centers for treatment, we've also realized one thing, is that they come from broken homes or very difficult circumstances. For example, their parents may be divorced. Or they may be in jail. They may be selling drugs. They may be doing sex work, prostitution. So these are very difficult circumstances for the children. So they can, to escape all these difficulties, challenges, they start taking drugs. हेल्थ पे इम्पैक्ट तो आप समझते हैं, इसमें कैंसर हो सकता है, हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी. If a single person is taking drug, he is ruining his own life only. But if a married one who is taking drugs, he is ruining the wife, the children, like 3-4 people's health. हेल्थ भी एंड सोशली भी बहुत इसका इम्पैक्ट है. इवन अडल्ट कैन बिकम होमलेस. दैट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट. दे लूज द फैमिली. पूरा जो बॉन्डिंग एंड सपोर्ट फैमिली देता है आपको, एक सिक्योरिटी देता है, वो भी लूज हो जाता है. जॉब में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, जॉब आपकी जा सकती है. नोबडी विल लाइक अ पर्सन हु कम्स ड्रंक एवरी डे, डजंट कम ऑन टाइम, ही फाइट्स विद द कॉलीग्स. कोई ऐसे पसंद नहीं करता किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑफिस में. सिमिलरली इफ चिल्ड्रन गेट डिपेंडेंट, दे विल ड्रॉप आउट. स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, उनका ग्रेड्स कम हो जाएगा, फेल हो सकते हैं. फिर लगातार ऐसे होते होते दे ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल. फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं. वी हैव सीन केसेस वेयर if somebody
in the family starts taking drug or alcohol, they don't want to associate with that person. एक्सीडेंट में आया कोई भी, किसी का हाथ में चोट आई, पैर में चोट आई, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसको फिजियोथेरेपी दी जाती है, उसको एक स्टिक दी जाती है, उसको 2 स्टिक्स दी जाती है कि वो चलना सीखे, उसको एक्सरसाइजेस कराई जाती है, क्योंकि उसकी जो पुरानी फंक्शनिंग है उसे हमें वापस से रिस्टोर करना है। तो एडिक्शन में भी यही होता है कि जो एक इंसान है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, हमने सीखा कि ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को इम्पैक्ट करती है, तो वो फंक्शनिंग जो खो चुकी है उसको हमें वापस लेकर आना है। जैसे आप भूख लगती है पर आपके पास खाना नहीं है, तो आपको जो भूखा महसूस होता है ना, वैसे ही जब ड्रग नहीं लेते तब हमें जो महसूस होता है उसे हम विड्रॉल कहते हैं। WHO ने एडिक्शन को एक बीमारी बोल दिया है, काफ़ी पहले 1957 में बोल दिया है। UNHCR, स्लिक, बॉस्को जो भी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं, हम लोग रोज़ वॉक इन केसेस अटेंड करते हैं, ठीक है। हमको ये आइडिया आप ही लोगों से मिलता है कि क्या क्या परेशानी आ रही हैं या क्या ट्रेंड जा रहा है। उस हिसाब से हम ये कोशिश करते हैं कि जो NGOs काम कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक है, उनसे आपका रब्ता कराएं, उनसे आपकी बातचीत कराएं, आपको ये बताया जाए कि कैसे, जैसे आज डी एडिक्शन पे एक सेशन था, कैसे ड्रग कितने टाइप के होते हैं, कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हमारी फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं अप टू एन एक्सटेंट, ठीक है, या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, कैसे एक सोशल फैब्रिक को इम्पैक्ट करते हैं। गंदा पानी बह रहा है, गंदा पानी तो नहीं पीते हैं, वैसे ही हमको ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स जो हैं हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी रिश्तेदारी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, ठीक है। आप अपने बच्चों को अवेयर कीजिए, खुद अवेयर होइए।